नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं वाराणसी के हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयोजित क्लिनिकल कार्डियो डायबिटीज सोसाइटी ऑफ इंडिया के 8वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह स्थल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि क्लिनिकल कार्डियो डायबिटीज सोसाइटी ऑफ इंडिया की 8वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन की चिकित्सकीय बैठक आज 20 सितंबर से वाराणसी के NH2 GT रोड भदवर में स्थित हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शुरू हो गई, जो कि 22 सितंबर तक होगी। इस कॉन्फ्रेंस में देश व विदेश से कुल 104 डेलीगेट्स व 400 प्रतिभागियों सहित प्रोफेसर व डॉक्टर्स भी भाग लेंगे। आज की इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हेरिटेज मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर सिद्धार्थ राय, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मधुकर राय, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर MSI सिद्दीकी, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अवतार नारायण, प्रिंसिपल कर्नल डॉक्टर BK प्रसाद, डायरेक्टर डॉक्टर आकाश राय, डॉक्टर ऋचा राय करने के साथ ही डॉक्टर KK लहरी, डॉक्टर प्रीति कपूर, डॉक्टर योगेश कुमार गौर व डॉक्टर जितेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। तो डिस्टर्ब नहीं होगा ना, GDP तो डिस्टर्ब नहीं होगा। All the respected and distinguished guests at this prestigious gathering of medical leaders. It is with great honor that I welcome each of you to the 8th Annual National Conference of Clinical Cardio-Diabetic Society of India being held in the sacred city of Varanasi, known as Kashi, the ancient land of Lord Shiva. The city has been a center for millennia. Clinical Cardio-Diabetic Society of India, CCDI, headquartered at API Bhavan Gaya, Bihar, marks an important milestone in its 8th year of bringing together leading minds in the field. With the World Diabetes Day, it was founded by Dr. A.N. Rai. The body aims to update the clinician. DM Resident from KGMU Lucknow has been the joint organizing secretary of the WCCN 2023 and has got more than 12 national and international publications and has published one book. Today we will be here listening to him on the topic of diabetic neuropathy classification and reversible diabetic neuropathy. I request Dr. Harmohan Sahu to please come up and give his presentation. To the CCDSI call in session, and I thank to the chairperson for the invitation and to the organizing secretary and the committee of scientific society for inviting me to deliver a lecture on diabetic neuropathy. But I cannot be more thankful to my teachers who have taught me neurology, the ABCDs of neurology, so that I have stood in such a conference to present the topic. The topic that has been given to me is about classification and reversible neuropathies in diabetes. There are some non-diabetic neuropathies that are common in diabetes, like pressure palsy, it is common in diabetes. CIDP, it is more common in diabetes. Interrupt at the carpal tunnel, the ulnar nerve interrupt, cubital tunnel, lateral ligament, the peroneal nerve at the fibular head, and the tibial nerve at the tarsal canal. Now, coming to the most common interrupting neuropathy, that is carpal tunnel syndrome, which we most frequently encounter. If you think about diabetes with polyneuropathy, the incidence increases to 30%, and without polyneuropathy in diabetes, it is 14%. Diabetic only in almost 6% cases. The risk factors are the obese female, the
tumor was compressing this nerve from the ventral side, so that's why there was no treatment there. So such patient may. The patient was very ataxic, right? He barely could walk without support, right? Sorry for this glitch. It is all Microsoft and foundation is higher mental function replicated now with the normal limits. Power was 4 by 4 in normal limits, 4 decreased normal limits. Plantar's reflexes. Normal side was obviously positive. You could see the Rombergs, right? He's about to get unsteady. He's about to fall. Yeah. So this is unsteady gait. So on routine examination, his RBS was 304, SB1 was 10.1. So now the house is open. Let's be interactive. How many of you think this is diabetic neuropathy? I mean, बीस बाईस पहले दवा खाते थे और चलने फिरने में दिक्कत होती थी। एक दो बरिस दो देखूं चलने का एक दो बरिस करीब साल से ऊपर से एकदम नहीं चल पाते कोई भी जी लाखली में चल पाते 15 लाख चले so I listen going on talking, but the basic idea here is there is a gentleman of roughly 70-72 years old male who again was diabetic for last 72 years, first 22 years. With a poor control, right? In between, and at times he would be good control. He would have good control. 2 years, the diabetic control was relatively decent, right? Much in the NCDs. I mean, few tendencies like in the propionial and right. So okay, see, as a doctor, as a physician, as a neurologist, we have been taught to be aggressive on treatment. Right? You cannot treat this patient as diabetic neuropathy and just leave him for his own. So let diabetes be controlled for the life he has, or 25 years. But we two decided, we are going to leave it on that. What we decided is, we took his consent, right? We told him that there are chances that IVIG might not work. It's not typical CID, but we are having raised tendencies, right? Increased tendencies. So it gives a suggestion that there might be a component of demyelination, right? But as a partner, you should always be looking for any hidden malignancy, and this is a rule of thumb. Without fail, you should be working on for that. And now, patient after the 10 days of 5 days of IVIG and after 10 days when we examined him, he was not able to walk even with support, but he was now able to walk with support, and we assume that when he comes up after a 1 month in follow, he definitely will have a better improvement and he will improve, right? So significant improvement after IVIG. So diabetes and CID. Literature reveals that the prevalence of CIDP tends to be higher. A very good afternoon to all of you. I've been given this task has been made a little easier because the previous talk was on diabetic neuropathy. To say that I have such a severe pain that I can actually cut my legs off. So diabetes, if combination to slow down or to treat diabetic neuropathy, nothing works. The only drug which is known to have some impact is slowing down the acid because it takes care of the aldose reductase pathway. So what we are left with is to get a strict control of diabetes. मैं डॉक्टर मधुकर राय, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन और एंडोक्रिनोलॉजी में HIMS में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जैसे हिंदुस्तान में इतनी तेजी से डायबिटीज, हार्ट डिजीज और किडनी डिजीज बढ़ रही है, तीनों के एक्सपर्ट को हम लोग एक साथ ले आकर के उसके बारे में, उसके बचाव का, उसकी दवा का जो रिसेंट डेवलपमेंट है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारे पूरे पैन इंडिया हर स्टेट से लोग हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। और हमारे यहाँ की डायबिटीज थोड़ी दूसरे तरह की डायबिटीज है, उसको मैनेज करने के लिए हमको अपने हिंदुस्तानी तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सब लोग बैठे। ये कॉन्फ्रेंस कब से कब तक चलेगी? ये आज से शुरू हो रहा है। आज हम लोग का कॉन्फ्रेंस चल रहा है। पहले सेशन में न्यूरोपैथी पर था, फिर डायबिटीज प्रेगनेंसी पे होगा, उसके बाद 2 दिन और चलेगा और 22 को ये आफ्टरनून में खत्म हो जाएगा। मैं प्रोफेसर जयंत पंडा हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ मेडिसिन और डायबिटीज का SCB मेडिकल कॉलेज कटक से।
ये हम 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस अभी चल रहा है बनारस में, उसमें आया हूँ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो CCDSI बोलते हैं। ये है क्लिनिकल कार्डियो डायबिटीज सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसका 8th एनुअल कॉन्फ्रेंस है अभी जो बनारस में शेड्यूल है। और इधर सारे हिंदुस्तान से बहुत सारे डॉक्टर आके रजिस्ट्रेशन किए हैं, लगभग 1000 डॉक्टर किए हैं। और डायबिटीज का और हार्ट डिजीज का अलग अलग टॉपिक में डिस्कशन शुरू हो गया है और चलेगा अगला 2 दिन। अभी ऐसे हैं कि हम लोगों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं चल रहा है। जो लोग ठीक चीज नहीं खा रहे हैं, कोई व्यायाम नहीं कर रहे हैं, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई स्ट्रेस में है, कोई मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पकड़ के बैठा है, ऐसे सोने नहीं पाते हैं, टाइम नहीं पाते हैं सोने के लिए, जो सोशल मीडिया में लगे हुए हैं। ये जो लाइफस्टाइल है उसके वजह डायबिटीज का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है और हार्ट डिजीज का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। और ये हालत में दवा होते हुए भी बहुत सारे मरीज रोज रोज डायबिटीज डिटेक्ट होते हैं। उनका डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन होता है, जो हार्ट इफेक्ट होता है, आंखें इफेक्ट होता है, पाँव इफेक्ट होता है और किडनी इफेक्ट होता है। और उनसे उनका इलाज भी बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे डेथ भी बढ़ जाता है और उनको सही ढंग से जीने का मजा नहीं मिलता है। तो हमारा ये कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इन लोगों को कैसे अच्छा जिंदगी दिया जाए, कैसे आदमी लोग ठीक जीवन धारा रखे कि उनको डायबिटीज ना हो, और जिनको हो भी गया वो कंट्रोल में रहेगा और कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, और उसमें कोई नॉन डायबिटिक है उन जैसे ये जी सकता है और सारे काम कर सकता है। उसमें दुनिया भर का डॉक्टर आ रहे हैं, हिंदुस्तान का सारे डेलीगेट्स और फैकल्टीज है, और हमारा ICCMD है जो इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियो डायबिटोलॉजी और मेटाबॉलिक डिजीज में उसका डीन हूँ। उसका भी अभी प्रोग्राम चलेगा, फेलोशिप दिया जाएगा। और उसमें हम डॉक्टर लोगों को ऐसे ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि वो ठीक से पेशेंट को अवेयर करे और इनका इलाज ठीक करे कि पेशेंट का जिंदगी ठीक रहे और नंबर ऑफ डायबिटीज और हार्ट डिजीज सोसाइटी में कम जाए। आज जो सवाल उठता है कि डायबिटीज क्या क्योर हो सकता है, इंसुलिन बॉडी में नॉर्मल हो सकता है। जो इंसुलिन आता है हमारा जो पैंक्रियाज का बीटा सेल से, वो बीटा सेल कमता जा रहा है और इंसुलिन कमता जा रहा है, जिनको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। ऐसे टाइप 1 डायबिटीज में है जो बीटा सेल ही नहीं है उनका, जिंदगी भर वो बाहर से इंसुलिन लेते हैं। उनका क्या इलाज पॉसिबल है? देखिए, आजकल जो स्टेम सेल से अलग अलग सेल बनाया जाता है, और ऐसे भी होता है कि वो जो अम्बिलिकस का सेल रख के कोई जो न्यूबॉर्न आते हैं, जो बर्थ के टाइम जो अम्बिलिकस का सेल रखते हैं, उनका प्लूरिपोटेंट सेल होता है, जिसको आप कोई भी लाइन में डेवलप करवा सकते हो। उधर से बीटा सेल बन सकता है, न्यूरॉन बन सकता है, बोन बन सकता है, आंखें बन सकता है, स्किन बन सकता है, कोई भी डेवलप कर लो। और उसमें अभी स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल होता है। वो लाइफस्टाइल करके जो अच्छा चीज खाना, व्यायाम करना, स्ट्रेस कमाना, स्क्रीन टाइम कमाना, एडिक्शन जो सिगरेट अल्कोहल कमाना, उसमें क्या होता है कि ये जो रिस्क फैक्टर कम जाता है, वजन घटाना, कोलेस्ट्रॉल कमाना, ब्लड प्रेशर कमाना, शुगर कमाना, ये इसमें क्या होता है, जो ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं और उसमें डायबिटीज का रेमिशन हो जाता है। जो बिना दवा, बिना इंसुलिन सालों भर बहुत टाइम वो नॉर्मल रहते हैं, हम रेमिशन बोलते हैं। रिवर्सल तो बोलते नहीं है, रेमिशन बोलते हैं। ये होगा कि वो जब वजन बढ़ जाएगा, BP बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वो इधर उधर खाने लगेगा, एक्सरसाइज करेगा नहीं, तो फिर से डायबिटीज आ जाएगा। तो रेमिशन है, आ जाएगा। ये तो एक पॉसिबिलिटी प्रूव हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी, स्टेम सेल से बीटा सेल रीजनरेशन और होमा बीटा होमा
IR का करेक्ट होना भी प्रूव हो गया है। तो ये ज्यादा दूर नहीं है कि डायबिटीज एक क्यूरेबल बीमारी हो जाएगा, लेकिन हम ये चीज अच्छी तरह माइंड में रखना पड़ेगा कि हमारा खाना पीना, टेंशन, फोन, अल्कोहल, सिगरेट, वेट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डाइट, इसको ठीक नहीं रखे तो जितना भी दवा हो, जितना भी इंसुलिन हो, जितना भी इलाज हो, जितना भी साइंस हो, कुछ फायदा नहीं होगा। डायबिटीज मरीजों का संख्या बढ़ता जाएगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सिद्दीकी, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भदवर वाराणसी से हूँ। अभी 20 तारीख से आज हमारे यहाँ जो CCDSI कॉन स्टार्ट हुआ है, ये क्लिनिकल कार्डियो डायबिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जिसकी ये 8वीं कॉन्फ्रेंस है और ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है, साल में एक बार होती है और इसमें लगभग प्रतिभागी जो हमारे पास स्पीकर्स आ रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे हिंदुस्तान से लगभग 104 स्पीकर्स हैं, डेलीगेट्स हैं। इनको सारों को मिला करके सब लगभग हम लोग 600 लोग के आसपास यहाँ गैदरिंग हो रही है। तमाम हमारे स्पीकर्स जो रेनाउंड अपने कार्डियो के स्पेशलिस्ट हों, चाहे वो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हों, दिल्ली से, हरियाणा से, बंगाल से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, आपके झारखंड, बिहार से, MP से, मुंबई से, तिरुवनंतपुरम से, कश्मीर से, तो कई जगह से लोग आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये एक संगोष्ठीय कार्यक्रम रखा गया था हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। ये हर साल अलग अलग जगह पे होता था। इस बार हम लोगों ने डॉक्टर प्रोफेसर मधुकर राय के अंडर में, वो इस बार यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है, तो उनके अंडर में मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होकर के इस बार इस कॉन्फ्रेंस को बनारस में लेकर के आए। बनारस चूंकि ऐसे भी काफी अब लोग आना भी चाहते हैं, मोदी जी की वजह से भी, और गंगा जी की जानकारी तो लोगों को सालों से रही है, तो मोक्ष की जगह है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है, तो एक बार घूमने का भी एक वो होता है। और साथ में जो इसके साथ एक हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है CCDSI कॉन, आगे के आने वाले वक्त में डायबिटीज के ऊपर शोध और कार्डियो के ऊपर जो नए नए शोध हो रहे हैं, नई दवाइयां आ रही हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ जो डेलीगेट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस पे अपने अपने मत रखेंगे और इस पे लगातार इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस की खास बात है, इस बार हम लोग जो है कॉन्फ्रेंस में इको की वर्कशॉप, जो हार्ट का डॉपलर टेस्ट होता है, उसको हैंड्स ऑन देंगे, हाथ से बच्चों को सिखाने का भी कोशिश करेंगे। कुछ फैकल्टीज जो बाहर से आ रही हैं उनको हाथ में इको दे करके उनको सिखाया जाएगा, क्योंकि कई बार होता है हार्ट अटैक का पेशेंट आया, ब्लड के टेस्ट दे रहे हैं, तो एक छोटा सा टेस्ट होता है डॉपलर, कुछ उससे भी जानकारी ली जा सकती है, तो उसकी जानकारी थोड़ी एक बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी होती है, तो उसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हम कराएंगे। साथ में कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जो हमारे पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं, ये एक तरह की विधि है जिससे पता लगता रहता है आपके 24 घंटे में शुगर कितनी ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, लो हो रही है, हाई हो रही है, एक ट्रेंड पता लगता है कि ऊपर नीचे। तो इसके अलग अलग डिवाइसेस आते हैं, तो उन डिवाइसेस के बारे में भी हम उनको सिखाएंगे कि कैसे लगाया जाता है, उसको कैसे मॉनिटर किया जाता है, और उनके वजह से हम पेशेंट के केयर में बहुत सारी चीजें बदलाव कर सकते हैं। उनके ट्रीटमेंट को लेकर के, इंसुलिन लग रही हो या दवाइयां खा रहे हो, तो उनको चेंज करके, बढ़ा के, घटा करके, उनके सही दवाइयों का सही डोज पे रख करके उनका चयन यूज करके उनको सही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है डायबिटीज कंट्रोल के लिए या हार्ट के पेशेंट्स के लिए, जो खास करके इकोकार्डियोग्राफी के मेरे बारे में बताया। इसके अलावा कुछ जानकारी और कि ये एक इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पहली बार ये वर्कशॉप ऐड की गई है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, ना कि सिर्फ यूपी से, यूपी के बाहर के भी मेडिकल कॉलेज से प्रतिभागी आ रहे हैं। वो अपने नए नए शोध लेकर के यहाँ प्रेजेंट भी करेंगे, उस पे उनका एक रेटिंग भी होगी, फर्स्ट प्राइज है, सेकंड प्राइज है, तो उनके इनाम भी उनको मिलेंगे कि वो हाँ किस तरह के शोध लेकर के आगे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में उन्हीं को देखना है, उनको मरीजों को हैंडल करना है, तो ये एक ट्रेनिंग भी होगी उनकी, और आगे जाकर के वो क्या करेंगे ये उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे।
क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।